आज की जो निशिस्त है इसका उन्वान है फ्रंटियर्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑब्लिक मशीन लर्निंग। इसमें मैं अब हमारे जो स्पीकर्स हैं उनको दावत दूंगा, पर इससे पहले कि बात शुरू हो मैं अपने मौजूद स्पीकर्स का वेलकम करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मेजर नहरी साहब का वेलकम हमारे जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रशीद सर करेंगे। यू आर मोस्ट वेलकम हेयर सर इन दिस प्रोग्राम। हमारे अब्दुल रशीद सर प्रोफेसर AQ अंसारी साहब का वेलकम करेंगे। मोस्ट वेलकम सर। फिर हमारे अब्दुल रशीद सर प्रोफेसर ख्वाजा शाहिद साहब का वेलकम करेंगे। हमारे बीच दो स्पीकर्स के अलावा एक तीसरे मौजूद स्पीकर भी मौजूद हैं, प्रोफेसर अब्दुल समद इब्राहिम साहब। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं सर कि आप मंच पर तशरीफ लाएं और अब्दुल समद सर का स्वागत हमारे सदर साहब प्रोफेसर ख्वाजा शाहिद सर करेंगे। सर, यू आर मोस्ट वेलकम सर इन दिस प्रोग्राम एंड वी आर ईगर टू लिसन टू यू। अब मैं इस प्रोग्राम का आगाज़ करता हूं और सबसे पहले स्पीकर की तरह मैं बुलाना चाहूँगा मेजर नहरी साहब को। और इससे पहले कि सर मैं आपको बुलाऊं, मैं आपका एक इजमाली तारुफ देना चाहता हूं। मेजर नहरी साहब ऑफिसर कमांडिंग मेजर रहे इंडियन आर्मी में फ्रॉम ईयर 2000 मई 2000 टू मई 2006, और आपने मुल्क को अपनी खिदमत दी फ्रंटियर्स पर, और जो लोग फ्रंट से मुल्क की हिफाजत करते हैं उनके साथ रह करके। उसके बाद आपने बिजनेसेस एंड प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन किया और आप हेड बिजनेस इनोवेशन एंड प्रोजेक्ट्स रहे वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज में। उसके बाद आप रहे जॉनसन एंड जॉनसन में हेड एशिया पैसिफिक। उसके बाद आप कंपनी ग्रुप चेयरमैन ट्राइजम ग्रुप ऑफ कंपनीज में रहे, और फिलहाल आप ग्लोबल डिलीवरी सेंटर हेड HCL नागपुर हैं। और मेजर साहब की फिलॉसफी ऑफ लाइफ है लाइफ इज़ ए कलेक्शन ऑफ चेंजिंग मोमेंट्स एंड एंजॉइंग चेंज इज़ लाइफ। ये बहुत मौजू भी है इस सेंस में कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी को हर रोज़ बदल रही है, और उस बदलाव से हम कितने जल्दी अपने आप को हम आहंग कर सकते हैं ये बहुत ज़रूरी है। सर, मैं आपको दावत देता हूँ कि आप आएँ और अपनी बात रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Thank you, Aslam Ahmed Sahab, for inviting me. With the permission of the chair, respected chairperson, my co-speakers, ladies and gentlemen, I am truly honored to stand before you today to discuss one of the most exciting and transformating frontiers in education, artificial intelligence and machine learning. The advent of big data, cloud computing, artificial neural networks and machine learning has empowered engineers to create machines capable of simulating human intelligence. These technologies have paved the way for machines to perceive, recognize, learn, react, and solve problems, giving rise to what we now know as artificial intelligence. This has developed over the years, and we all have been witness throughout the journey. Inevitably, these intelligent technologies are poised to revolutionize future workplaces, emerging as the next disruptive innovation. Many currently regards AI as a crucial driver in the context of the fourth industrial revolution, and it has the potential to usher in the fourth revolution in education. As a result, artificial intelligence education has already become an integral part of school curriculum. However,
Much like the initial promises of television and computers, which were thought to be game changers in education, but mainly augmented access to information without fundamentally altering core educational practices, artificial intelligence impact on education remains an evolving field. Nevertheless, educators have a responsibility to closely examine the current capabilities of artificial intelligence and identify potential pathways for enhancing learning. Given the growing attention, it is timely to explore recent AI research in education, providing educators with an updated grasp of the field in preparation for potential changes. Artificial intelligence is increasingly heralded for its strategic values in education. It is seen as a potent learning tool that can alleviate the burdens on both teachers, alleviate the burdens on both the teachers and students, while offering effective learning experiences. In conjunction with ongoing educational reforms, such as the digitization of learning resources, gamification, and personalized learning experiences, there are numerous opportunities for AI applications in education. For example, artificial intelligence techniques have been systematically harnessed to create responsive and adaptive tutorials, constructing individualized learning environment to compensate for the shortage of teachers through intelligent tutoring systems, also known as ITS. These ITS provides personalized learning experiences through monitoring students' input, delivering tailored tasks, providing effective feedback, and enabling human-computer communication interfaces. As more ITS are developed for various subjects and topics, they are likely to reshape the role of teachers. The integration of artificial intelligence and machine learning into the educational landscape represents a pivotal moment in our pursuit for knowledge and human development. These technologies hold the power to revolutionize how we teach, learn, and interact with information. Today, I want to delve into the incredible potential of AI. I have been asked to speak in Urdu as well. I will try. These integration of AI and machine learning into the educational landscape represents pivotal moments of the pursuit of knowledge of human development. These technologies hold the power of revolutionizing how we teach, learn and interact. एक चीज़ हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये आपके और हमारे नज़रिए को टोटली बदल देगा. Major चीज़, I'll leave my speech apart. If I have to speak in Hindi, I had in Urdu, I'll try to do that rather. So मेजर जो एक्टिविटीज़ में ये है कि हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा उठाना चाहिए, जो नई चीज़ नहीं है. अगर आप देखें तो एक अरसे से हम लोग इसको इस्तेमाल में ले रहे हैं, चाहे वक्तन फ़वक्तन जो नए नए सॉफ्टवेयर्स और नए नए मोबाइल्स हम ख़रीदते हैं, तो अगर हम मोबाइल भी यूज़ करते हैं तो आजकल वो फेस रिकग्निशन से ओपन होता है, जो पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में इतना एक्सेसिव पोटेंशियल है कि वो हमारे बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है. इन अ सेंस, अगर हम इंडिविजुअली उनके डेटा को कैप्चर करते हैं तो बच्चों के लिए हम इंडिविजुअलाइज्ड, यानी उनके जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा हम उनके लिए सिलेबस प्रिपेयर कर सकते हैं. आप एक बात सोच के देखिए कि एक ऐसा क्लासरूम हो जिसके अंदर हर बच्चे को उसकी जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा पढ़ाने वाला. जैसे अभी मैं इंग्लिश में आपको ये बता रहा था और मुझे इनपुट मिला कि मैंने उर्दू में भी बात करनी चाहिए, तो बेसिकली
कुछ सेक्शन ऑफ लोग जो यहाँ मौजूद हैं उनको उर्दू में हमको बात करनी है। उसी तरीके से अगर हम अपनी क्लासेस को देखें तो हमारे सारे बच्चे एक लेवल पे नहीं होते हैं। हर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, उसको एग्जाम्पल्स अलग चाहिए होते हैं, उसकी समझ अलग होती है। हम जनरली उनको कमज़ोर बच्चों में कैटेगराइज कर देते हैं जो एक्चुअली कमज़ोर नहीं होते हैं, सिर्फ उनके समझने का तरीक़ा अलग होता है और उनको हमें समझाना अलग तरीके से चाहिए। चूँकि एक क्लास में तकरीबन 30, 40, 50 बच्चे होते हैं, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट कि हम हर बच्चे के हिसाब से पढ़ाएं। अच्छा टीचर तो वही है जो हर बच्चे को समझ सके और हर बच्चे को उसके हिसाब से समझा सके। एजुकेशन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक नए डायरेक्शन में ले जा रहा है। वो हर बच्चे की रिक्वायरमेंट को समझ सकता है। जब वो एग्ज़ाम देता है तो वो ये समझ सकता है कि ये किस जगह गलती कर रहा है और उसके हिसाब से उसका ट्रेनिंग करिकुलम वो डिज़ाइन कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग बेस्ड है। इसका मतलब है कि एवरी टाइम जब हम डेटा मशीन के अंदर अपडेट करेंगे, वो डेटा अपने आप एनालाइज करके आपको बताएगा कि किस तरफ आपने उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाना है। जनरली हमारी क्लास, एक बार मुझे बीच में अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं कुछ बच्चों को स्कूल जाके पढ़ाता था। तो एक हमारी क्लास में बच्चा था कृष्णा करके, क्लास 7th में। वो बहुत ही ज़्यादा शरारती बच्चा था और हर टीचर उसको या तो क्लास के बाहर खड़ा करती थी या तो पनिशमेंट पे रहता था, या उसकी नाराज़गियों से, उसकी शरारतों की वजह से टीचर्स का आधा टाइम बर्बाद हो जाता था। आई यूज़ टू स्पेंड गुड टाइम विद हिम। मैं जनरली उसको अपने बाजू ला के बिठाता था और ज़्यादातर क्वेश्चन मैं उसको अपना फ्रेंड करके एड्रेस करता था और जनरली सारे क्वेश्चंस को इस तरीके से मैं उसके लिए बोलता था जिस तरीके से उसको अंडरस्टैंडिंग में आसान हो। यकीन मानिए 1-2 सेशंस के बाद सेशन ऐसा था कि वो मेरे आने के से खुश होता था। ही वांटेड मी टू कम इन हिज क्लास। मशीन लर्निंग आपको असिस्ट कर सकती है एज टीचर्स कि आप हर इंडिविजुअल को उसकी स्ट्रेंथ से पहचानें और उसके हिसाब से उसको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही बेनिफिशियल नहीं है, बल्कि एज टीचर्स, एज मैनेजमेंट हमारे लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम ऐसे करते हैं जो मुंडेन हैं, यानी वो यूज़लेस हैं, या ज़्यादातर हमारा बहुत ही प्रोडक्टिव वर्क खा जाती हैं। अगर आप देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स भी आजकल टीचर्स के पास रहते हैं। टीचर्स ने सिर्फ बच्चों को पढ़ाना ये नहीं है, बल्कि सिलेबस बनाना, उनके लिए लेसन प्लान्स बनाना, ये सारी एक्टिविटीज़ भी टीचर्स करते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर हैं, ये आपको काफ़ी हद तक इससे आज़ाद कर देते हैं। कुछ ही दिन पहले की बात है, मेरी वाइफ जो भी एजुकेशनिस्ट हैं, जब ये चैट जीपीटी नया आया था तो मेरी वाइफ मुझसे कह रही थी कि मैं बहुत थक गई हूँ। मैंने कहा किस चीज़ से? कहते टीचर्स जो हैं वो लेसन प्लान बनाते हैं, क्वेश्चन पेपर्स बनाते हैं, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं और मैं थक जाती हूँ करेक्ट करने के लिए। और कई बार मैं उनको करेक्ट करके देती हूँ, फिर वो दोबारा से बना के लेके आते हैं और मैं फिर से उसको करती हूँ। इसमें उनका भी वक्त जा रहा है और मेरा भी वक्त जा रहा है। वो घर जाके अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं दे पाते हैं। तो आई टोल्ड हर, हैव यू ट्राइड चैट जीपीटी? एंड शी सेज नो, आई एम नॉट अवेयर व्हाट चैट जीपीटी इज ऑल अबाउट। तो मैंने उनको बोला अच्छा ठीक है, आप मुझे कोई एग्जाम्पल दो, आई विल क्रिएट वन लेसन प्लान फॉर यू। कहते आपने एजुकेशन में तो इतना वक्त डाला नहीं, आप लेसन प्लान कैसे बनाएंगे? मैंने कहा गिव मी अ चांस, आई विल ट्राई टू मेक इट फॉर यू। उन्होंने मुझे बोला ठीक है, क्लास 9th का मैथ्स का CBSE का चैप्टर 4 जो है उसके ऊपर आप मुझे लेसन प्लान बना के दीजिए, एंड लेसन प्लान शुड बी फॉर 30 मिनट्स ओनली। यकीन मानिए जो उसने वर्ड्स बोले, यानी जो मैंने अभी आपके सामने बोले, सेम वर्ड्स मैंने चैट जीपीटी में एंटर किए और चैट जीपीटी ने लेसन प्लान तैयार कर दिया विद इन द मैटर ऑफ सेकेंड्स। और लैंग्वेज एरर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। एंड जब उसने ये देखा, सो नेक्स्ट डे से शी सेड आई वांट ऑल टीचर्स टू अंडरगो द ट्रेनिंग ऑफ यूजेज ऑफ चैट जीपीटी, अ वेरी सिंपल, वेरी वाइडली यूज्ड टूल। एंड यकीन मानिए टुडे मोस्ट ऑफ देयर लेसन प्लान्स दे कैन चेंज लाइक दिस। उनको कोई भी चीज़ दैट इंक्लूड्स, वो आपको बताता है आपने क्या एक्सरसाइज करनी है, हर चीज़, और उसके लिए टाइम भी स्लॉट डाल देता है। नॉट ओनली दिस, उसने मुझसे ये कहा कि मेरे पास टीचर्स हैं जिनके अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं मैक्सिमम एडजस्ट कर सकूँ। सो आई सेड ओके। हमने फिर से एक टूल निकाला, मैं आपको टूल्स की लिस्ट बताऊँगा, और मैंने बोला लेट्स मेक द टाइम टेबल फॉर यू। हमने कंस्ट्रेंट्स डाले, टीचर्स के नाम डाले, पर वीक लेक्चर्स डाले,
और ये डालने के बाद उसने नॉन कन्फ्लिक्टिंग टाइम टेबल हमें बना के दे दिया। जस्ट इमेजिन, दे वर स्पेंडिंग आवर्स एंड आवर्स टुगेदर फॉर क्रिएटिंग टाइम टेबल, और ये डे इन एंड डे आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर्स की। उसने बोला कि मैं चाहती हूँ, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये मैंने किया उनके साथ बैठ के। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि जब ये लेक्चर मैं ले रही हूँ तो इमीडिएटली आई शुड बी एबल टू जनरेट अ क्वेश्चन बैंक ऑफ व्हाट आई हैव टॉट। सो आई टोल्ड हर दैट हाउ टू रिकॉर्ड ऑडियोज व्हेन यू आर टॉकिंग ऑन द सिस्टम, और उसी को कॉपी पेस्ट कर दीजिए आप चैट जीपीटी में, या एक और टूल है जिसको जो क्वेश्चंस बनाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज क्विल बॉट। वो प्लेजरिज्म चेक करता है, एंड एक जो है आपका क्लास पॉइंट AI है, एजुकेशन को पायलट है। ये ऐसे कई सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको मैंने कहा आप यूज़ कर सकते हैं, एंड शी यूज दो सॉफ्टवेयर्स, एंड द बेनिफिट शी गॉट इज कि एवरी क्लास के एंड में वो एक क्वेश्चन बना सकते हैं बच्चों के लिए, एक क्विज बना सकते हैं जो पावर पॉइंट बेस्ड है, यानी इमीडिएटली बच्चा उसको पावर पॉइंट पे देख सकता है और ये क्लास में खड़े खड़े वो बना सकते हैं। दे हैव गॉट द लैपटॉप इन फ्रंट ऑफ देम, वो वहीं ये चीज़ कर सकते हैं। सो अगर आप देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से रिवोल्यूशनाइज कर देगी। एक और फियर है टीचर्स में कि इससे हमारे जॉब्स चले जाएंगे या नहीं जाएंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये आपके जॉब्स को बहुत अच्छा करेगा लेकिन चले नहीं जाएंगे। बेसिक रीजन बीइंग ह्यूमन टच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय मशीन टच। जो आप सिंपैथेटिकली बच्चे की तरफ देखेंगे, जो आप उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे, जब आप उसको मुस्कुराएंगे, वो सिस्टम नहीं कर सकता है, वो आप कर सकती हैं। और वो मुस्कुराना, वो नरमी से कंधे पे हाथ रखना बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होता है एक बच्चे के लिए। सो इफ यू सी, दिस इज गोइंग टू असिस्ट यू इन डिलीवरिंग योर रिजल्ट्स। वी आर सीइंग देयर आर लॉट ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच आर कमिंग। अगर आप देखें तो देयर इज टीचर ऑलरेडी बना दी गई है, विच इज़ अ सॉफ्टवेयर, एक रोबोट है जो क्लास में क्लास लेता है और हर क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। अभी भी वो जो है फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं दे सकता, लेकिन ओवर अ टाइम हो सकता है वो फेशियल एक्सप्रेशन भी दे दे, लेकिन फिर भी उसको काफ़ी वक्त है। लेकिन आप लोगों को वो फिर भी रिप्लेस नहीं कर सकता, हम लोगों को फिर भी रिप्लेस नहीं कर सकता। देयर आर मेनी थिंग्स जो मैंने लिखी थी, लेकिन चूंकि मैं इंग्लिश में बात नहीं कर रहा हूँ, so I may not be able to cover all of that, but इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबली आजकल हर यूनिवर्सिटी में, हर स्कूल में यूज़ करी जा रही है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, उसमें जो हैं आपको प्रीमियम प्लान्स भी अवेलेबल हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें हम बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ को या हमारे एजुकेशन सिस्टम को सिंपल बनाती है। हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स के लिए आई विल लीव इट टू द प्रोफेसर साहब हियर बिकॉज ही विल बी एबल टू स्पीक टू यू ऑन टेक्निकल पार्ट ऑफ इट। I will tell you a little experience of mine in HCL in the companies which we are working with. हमारी कंपनीज में पहले हम लोग चैटबॉट्स यूज़ करते थे। आप लोगों ने IVR तो यूज़ किया ही होगा कि जब आपको कोई कंप्लेन करनी होती है किसी टेलीफोन की या किसी बैंकिंग की, तो आप कॉल करते हैं, एक वॉइस, रिकॉर्डेड वॉइस आपसे बात करती है, दैट इज़ इंटरैक्टिव वॉइस रिकॉर्डर्स, और उसमें फिर आप इनपुट्स डालते हैं और वो ज़्यादा बात आपसे करती चली जाती है। उसी तरीके से अब जो है वो रिकॉर्डेड वॉइस की ज़रूरत नहीं है, इंटरैक्टिव वॉइसेस हैं। उसी तरीके से स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनको हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो यूज़ करें, कि वो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं और वो आपसे इंटरैक्टिवली आंसर्स देते हैं, तो वो आपके समझ के लेवल पे उतर के आंसर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। आई वुड लाइक दोज हु वांट टू राइट डाउन टू हैव दिस। There is one software AI tool. I'm telling the top 7 tools today in usage. एक क्लास पॉइंट AI करके एक टूल है। ये टूल जो है आपके लिए इंस्टेंट क्विज जनरेट कर सकता है क्लासरूम के अंदर। अगर हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं, हमने अभी ट्रेनिंग दिया है, हम थैंक यू सो मच, हम इंस्टेंट टूल जनरेट कर सकते हैं। दूसरा क्विल बॉट करके एक है जो प्लेजरिज्म चेक कर सकता है। अब आपके लिए एक चैलेंज बहुत बढ़ गया है, वो ये है कि आप बच्चे को बोलेंगे कि आज तुम स्पीच दो, वो अमेजिंग स्पीच लिख के आएगा, आपको लगेगा ये अंग्रेज़ी आई कहाँ से, पहले इसने तो इस अंग्रेज़ी में कभी बात ही नहीं की है।
तो वो जो है आपको चैट जीपीटी और इस तरह के सॉल्यूशंस देंगे। एट द सेम टाइम आप उनको बोलेंगे एक ऐसे लिखिए, एक लेटर लिखिए, वो डालेगा सिस्टम में और आप जो है खुद सर पकड़ के बैठ जाएंगे, हम इतने छोटे थे तो हम नहीं लिख पाते थे। तो बेसिकली आपको भी उसको चेक करना है, तो उसके लिए क्विल बॉट करके एक सोल्यूशन है जो प्लेजरिज्म चेक कर लेगा, वो चेक करेगा कहाँ से ये कॉपी किया गया है और बनाया गया है। पावर पॉइंट स्पीकर कोच करके एक है, आप अपनी प्रेजेंटेशंस को खुद ट्रायल कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर सकता है किस तरीके से आपने अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है। स्लाइड AI करके एक टूल है, slideai.io। ये जो टूल है इंस्टेंट टेक्स्ट टू स्लाइड जनरेशन है। अगर आपने कुछ लिखा है और आप बच्चों को कुछ तरीके से पढ़ाना चाहते हैं तो इमीडिएटली वो एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट कर देगा। उसके अलावा एक एजुकेशन को पायलट करके एक टूल है जो आपके लेसन प्लानिंग में, वर्कशीट में, हैंडआउट्स में, असेसमेंट्स में, ये सारी चीज़ें बनाने में आपको हेल्प करेगा। ये सारे टूल्स जो मैं बता रहा हूँ इसके फ्री वर्जन्स भी अवेलेबल हैं और इसके अलावा प्रीमियम प्लस वर्जन्स भी हैं जो आप पेमेंट पे ले सकते हैं। एक ग्रेड स्कोप करके है, ग्रेडिंग सिस्टम का है, वो बच्चों के ग्रेड्स के अलावा उनके परफॉर्मेंस ट्रैकिंग भी करता है और वो ये भी बताएगा आपको कि किस एरिया में आपने एम्फेसिस बच्चों के लिए डालना है। एक फॉर्मेटिव AI है जो रियल टाइम फीडबैक आपको बच्चों की परफॉर्मेंस का देगा, असेसमेंट जनरेट भी करेगा और बहुत तरह के ड्राइवर्स ऑप्शंस आपके लिए प्रिपेयर कर देगा। इन कंक्लूजन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम एजुकेशन सिस्टम में वॉलंटरली और हैप्पीली इंटीग्रेट करेंगे और हम थोड़ा सा एफर्ट लेंगे, नॉट ओनली इन दैट बट ऑल्सो इन रिसर्च। फ्यू डेज बैक आई वॉज हियर फॉर लॉन्च ऑफ वन वेबसाइट विच हैड द चैट जीपीटी इंग्रेन्ड इन इट। वो एक मुसलमान बच्चे ने बनाया था। अगर हम उस तरीके से रिसर्च में उनको हेल्प करेंगे, हम अपना डेटाबेस खुद बनाएंगे तो हम जो है इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज आज की डेट में इसका मेजॉरिटी कंट्रोल जो है वो US एंड यूरोप के हाथ में है, तो हमको उसको अगर अपने पास लेना है तो वी हैव टू क्रिएट आवर ओन डेटाबेस। आई वुड लाइक टू समराइज की टेकअवेज, और अगर मैडम की इजाज़त हो तो मैं ये इंग्लिश में बोलना चाहूँगा बिकॉज आई वॉन्ट दीज टेकअवेज टू बी कंसिडर्ड बाय द पैनल। First is that we should embrace the technology advancements. Educational institutes should actively embrace the latest technology innovations, especially artificial intelligence and machine learning to enhance teaching and learning experience. Second, मेरा takeaway आज के session का होना चाहिए कि teacher-student partnership. AI should be viewed as a partner for educators, assessing them in their roles and empowering students to learn more effectively. तीसरा सजेशन मेरा ये है कि इसको हम एक कंटिन्यूअस एडाप्टेशन का मोड बनाएं। द फील्ड ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज कंटिन्यूअली इवॉल्विंग। इंस्टीट्यूशंस शुड स्टे अप टू डेट विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट एंड प्रिपेयर टू अडैप्ट टू चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप्स। द बेस्ट पार्ट आई लाइक अबाउट दिस कॉन्फ्रेंस इज दैट वी आर नॉट शाइंग अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी। इनिशियली जब टीवी आता था तो बोलते थे नहीं ये नहीं चाहिए, कोई नई चीज़ आती थी टेक्नोलॉजी हम साइड करते थे, नाउ वी आर एम्ब्रेसिंग इट, ये बहुत अच्छी बात है। द फोर्थ सजेशन आई हैव इज टीचर्स ट्रेनिंग्स। ऑफर ट्रेनिंग्स एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर एजुकेटर्स टू अंडरस्टैंड एंड effectively integrate AI and machine learning into their teaching practices. And last but not the least, collaboration and research. Please foster collaboration with researchers, edtech companies and other educational institutions to stay at forefront of AI in education and contribute to the development and best practices. Thank you so much for your patient hearing, and I hope I have been able to shed some light on artificial intelligence and machine learning as frontier of educational technology. Thank you so much. My apologies, I couldn't go through this. Thank you so much, Major Nehri Sahab. And I would request that whatever suggestions, sir, you have given, if you can give us a copy, then we will make use of it, sir. And before the program progresses further, I would now like to welcome our new arrived guest, Janab Shariq Naqshbandi Sahab, and I would request our Professor Khwaja Shahid sir, our President, to welcome him. Thank you so much, sir. Our next speaker, before I call him, I would like to introduce our next speaker will be Janab Professor Abdul Qayyum Ansari Sahab. His brief introduction is that sir has been serving at Jamia Millia Islamia since the year 1984. He is presently
professor in Department of Electrical Engineering. He has been a BTech from AMU, MTech from IIT. He has published 90 reputed peer-reviewed journals and 1 book each written and edited, 15 book chapters and 120 conference papers. Sir has been a recipient of Raja Ram Bapu Patil National Award for Promising Engineering Teacher for creative work done in technical education. I would now invite sir to give his presentation. अब्दुल क़य्यूम अंसारी मुझे कहते हैं। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर से इसके ऊपर बात नहीं करूँगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनता कैसे है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, जो इस लेवल तक वो हम तक पहुँच पाया है, मैं उसके पर बात करूँगा। इसको कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। कोई भी मशीन, कोई भी चीज़ छोटी छोटी चीज़ों से मिल करके बड़ी बनती है। मैं उसके ऊपर आपकी तवज्जो लूँगा। लॉजिक थ्योरी और सॉफ्ट कंप्यूटिंग, ये 2 बुनियादी चीज़ें हैं जिससे मिलकर के आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल तक आया है कि चैट जीपीटी की मदद से आप अपना सर्व काम आसानी के साथ कर सकते हैं, उसके एप्लीकेशन के लिहाज से। मैं इससे पहले कि लेक्चर पे जाऊं, मैं आपको कुछ पहेलियां बुझाऊंगा। मैं अपने उन नौजवान बच्चियों को और बच्चों को ये कहूँगा कि ये पहेली बूझने की कोशिश करें। आप इसे पढ़िए। ये एग्ज़ाम्पल चूँकि ब्रिटिश एग्ज़ाम्पल है इसलिए नाम आपको इंडियन नहीं मिलेगा। मैरी की माँ के 4 बच्चे हैं। पहला बच्चा है अप्रैल, दूसरा बच्चा है मई और तीसरा बच्चा है जून। तो चौथे बच्चे का नाम क्या है? मैरी। देखिए जवाब इधर से आया है, मैं अब इधर से एक्सपेक्ट करूँगा। अगला सवाल। रूबीना के ड्रावर्स में 6 पेयर्स हैं मोज़ों के। कुछ वाइट हैं, कुछ ब्लैक हैं और कुछ ठीक है, और कंप्लीट डार्कनेस से अंधेरा है, अलग अलग रंग के हैं। तो आप ये बताइए कि कितने मोज़े निकालेंगे वो, लेकिन सिर्फ कलर्स जो हैं वो 2 ही हैं, उनमें वाइट हैं और ब्लैक हैं। कितने मोज़े निकालने पड़ेगा कि एक पेयर बन जाए? किसने कहा 3? क्या बात है, बहुत अच्छा कहा आपने। क्योंकि अगर 2 निकालेंगे तो हो सकता है एक ब्लैक हो, एक वाइट हो। 3 निकालने पे ये होगा कि या तो तीनों ब्लैक होंगे, तीनों वाइट होंगे, या कम से कम 2 तो ब्लैक या 2 वाइट होंगे। वेरी गुड। नाउ दिस इज ए न्यूमेरिकल लॉजिक। अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। Now the complexity of question is increasing. Jayant was looking at a photo. Someone asked him, whose picture are you looking at? आप किसकी तस्वीर के ऊपर देख रहे हैं? उसने कहा, I don't have any brother or sister, but this man's father is my father's son. So who is this picture? Logic. और यहीं से कंप्यूटर साइंस और यहीं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत होती है। He says, I don't have any brothers or sisters, but this man's father is my father's son. So whose picture he has been looking at? सर ने बहुत सही जवाब दे दिया। मैं आपको जवाब देता हूँ। It was Jayant's son. वो अपने बच्चे की तस्वीर देख रहा था। So he said, this man's father is my father's son. लॉजिक है। ये एक टिक टॉक टो है जो हम लोग बचपन में खेला करते थे, और इसमें कंडीशन ये होती थी कि कोई भी एक साथ तीनों लाइनें नहीं होनी चाहिए, और इसमें जीत और हार हुआ करती थी। मैं इसको स्किप करूंगा क्योंकि हम आपको पेपर और पेन नहीं दे रहे हैं। ये आखिरी सवाल है। एक बॉटल है शीशे की, उसके अंदर एक कॉइन है। बॉटल को कॉर्क से बंद कर दिया गया है। कॉइन को बाहर निकालना है, न बॉटल तोड़नी है न कॉर्क को बाहर निकालना है। पैसा कैसे बाहर आएगा? नाउ आंसर देने से पहले हाथ उठाना है आपको। देयर इज ए कॉइन इन द बॉटल क्लोज विद द हेल्प ऑफ ए कॉर्क। You neither have to take out the cork nor have to break the bottle, yet you have to bring out the coin. Raise your hand. Okay, so please wait. Please wait. I just
concentrating on the children who are here. Okay, so there is an answer here. मैं समझता हूँ कि कुछ बच्चियों को ये जवाब मिल गया होगा, लेकिन वो अभी बोलना नहीं चाह रही हैं। सर आप बोलिए। मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे तो कॉइन कैसे बाहर आएगा? कॉर्क तो है वहां। सर उठाना है ना, ऊपर उठाने के लिए बोला ना सर आप। No, we don't have to take out the cork either. Cork has not to be pulled out. Yes, बेटा। बॉटल बिक जाएगा। अच्छा, दुकान पे जाके कहेंगे भैया ये बॉटल ले लो और मुझे 1 किलो आलू दे दो, ऐसा नहीं होता। Gentlemen, those who have worked in the chemistry laboratory, they know the feature of a cork. Cork is flexible enough to be pushed in. आप कॉर्क को अंदर धक्का दे दीजिए और पैसे को बाहर निकाल लीजिए। मैंने सिर्फ ये कहा था कि कॉर्क को बाहर नहीं निकालना है, मैंने ये नहीं कहा था कि कॉर्क को अंदर नहीं कर सकते। Now in these examples there is reasoning and there is a data that we worked with for the pair of socks. The point is that people started working on these discrete mathematical and practical problems from the very beginning of this in human sensitivity. And the very first people who worked were Socrates and Aristotle. उन्हीं ने अपने लॉजिक को देना शुरू किया। उन्हीं के ज़माने में येस और नो का कॉन्सेप्ट आया, लो और हाई, एंड और जुमलों को जोड़ने का काम, इफ्स और बट्स, इस तरह से लैंग्वेजेस का इवोल्यूशन हुआ, थ्योरम्स बने। इसके बाद बूलियन लॉजिक आया। जिन्होंने ज़ीरोज़ और 1 का कॉन्सेप्ट देखा होगा, जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को जानते होंगे, वहाँ पर हम सिर्फ 2 नंबर्स के साथ ऑपरेट करते हैं, 0 एंड 1। कंप्यूटर आज की डेट में भी सिर्फ 0 और 1 को समझता है। बच्चे सर हिला रहे हैं, जानते हैं कि दिस इज नोन एज बाइनरी। अब आपके पास 2 ही नंबर है, 0 और 1। अब अगला नंबर लिखना हो तो क्या करेंगे? आपके पास डेसिमल नंबर है, उसमें 0 से 9 तक होते हैं, 9 के बाद नंबर खत्म। अगला नंबर लिखना होता तो क्या करते हैं? पीछे जाते हैं, 1 और 0 को एक साथ लिखते हैं तो 10 बन जाता है। ऐसे ही 1 और 0 को लिखेंगे तो 2 बन जाएगा। तो दिस मैथमेटिक्स ऑफ बूलियन लॉजिक वाज डेवलप्ड बाय जॉर्ज बूल, जिनको हमने यहाँ पर दिखाया है। इसके बाद शैनन, बार्डीन और शॉकले, 1947 में ट्रांजिस्टर का इजाद हुआ और उसके ऊपर नोबेल प्राइज़ मिला इन 3 लोगों को। बार्डीन इज वन पर्सन हु गॉट नोबेल प्राइज ट्वाइस। सिर्फ अभी तक दुनिया में 10 लोग ऐसे हुए हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। उसमें एक मैडम क्यूरी भी हैं, और लास्ट ईयर केमिस्ट्री का जो नोबेल मिला था, द जेंटलमैन गॉट द नोबेल एट द एज ऑफ 90, द सेकेंड नोबेल। इन्होंने यस और नो, हाई और लो, 1 एंड 0, ऑन एंड ऑफ के कॉन्सेप्ट को मैथमेटिक्स में बदला, जिसको मैथमेटिक्स कहा जाता है, और उस मैथमेटिक्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के साथ जोड़ने वाला हमारे ये ट्रांजिस्टर की इजाद हुई, और इसके साथ ये रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हुआ। फिर हम लोगों ने इसको वोल्टेज के साथ जोड़ा कि हम किसी भी अपने जुमले को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के साथ अगर हम ऐड कर सकते हैं तो ये हमारे लिए मशीन का काम कर सकता है। लेकिन इसमें परेशानी ये हुई, ये हमारी तस्वीर ज़रा हटाएंगे वहाँ से। मैं आपको एक सिर्फ कॉन्सेप्ट दिखा करके अपने लेक्चर को ख़त्म करूँगा, क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस में आया कैसे। यस, ये ग्राफ है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि बल्ब 220 वोल्ट पे जलता है। अगर इसको एक ग्राफ की मदद से दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? हमने नीचे वोल्टेजेस लिए हैं, जहाँ 220 है वहाँ पे बल्ब के जलने को 1 की वैल्यू दी है, और बाकी जगहों पे 0, यानी 220 वोल्ट से आगे पीछे वो बल्ब नहीं जलता है, और एग्जैक्टली 220 वोल्ट पर बल्ब वो जलता है। दिस इज नोन एज डेल्टा फंक्शन। नाउ वी नो इट दैट प्रैक्टिकली the bulb also glows voltages around 220 volts. But computer cannot understand. The day the computer understands the fact that the bulb can glow at voltages around 220 volt, it will be able to understand the human language.
Now, 220 volt is a number, but around 220 volt is not a number. How can we represent this concept of describing around 220 volt mathematically will be an endeavor of human. And that is what exactly the computer scientists have done. Well, आगे चलते हैं. अगर हम किसी को ये एक्सप्लेन करने कि कोई आदमी लंबा है या नहीं है, इसका एक कट ऑफ बना सकते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में कि एक आदमी अगर 6 फीट का है तो वो लंबा है, और अगर 6 फीट में 5 फीट 9 इंच 11 इंच भी है तो वो लंबा नहीं है. तो डिस्क्रीट वे में अगर सोचा जाए तो एनी वैल्यू deviating from the accurate value will not give the desired result that we are trying to explain. तो इस कर्व से यही समझाया गया है कि ज़रा भी 1.8 मीटर से लेफ्ट हो तो भी वो टॉल नहीं है, और अगर उससे बड़ा हो तो फिर वो टॉल ही टॉल है. सो देर इज़ ए गैप. हाउ कैन वी रिप्रेजेंट? अगर टेम्परेचर की बात करें, पानी गर्म दिया जाए, आपको कहा जाए कि आप बताइए कि ठंडा है, गर्म है या ज़्यादा गर्म है. यू नो द ह्यूमन माइंड कैन ऑलवेज डिस्क्राइब ए टेम्परेचर. जैसे इस कमरे का टेम्परेचर है, आई मीन इट्स बहुत, कोई कहे कि साहब बहुत गर्मी है तो उसका भी एक कॉन्टेक्स्ट होगा कि वो किस टेम्परेचर से आ रहा है. लेकिन अगर हम लोग इस टेम्परेचर में रहने के आदी हैं तो हम कहेंगे नहीं मौसम बहुत अच्छा है. सो इट इज़ ऑल कॉन्टेक्चुअल. तो इसी तरह से अगर हम कहें कि साहब 20 डिग्री टेम्परेचर में ज़रा सा ऊपर हुआ तो पानी हॉट हो गया, और ज़रा सा नीचे हुआ तो ये वार्म हो गया, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. दिस इज़ नॉट ह्यूमन माइंड. व्हाट ह्यूमन माइंड डज इज़ that we try to explain the temperatures in this way: more or less hot, extremely hot, lukewarm. यानी एक warm होता है उसको हम फिर कहते हैं कि it's lukewarm. So there are various phrases that the humans use for describing a given situation. Now, should the computer understand these human phrases, it will respond to the queries that we'll put to it. तो अगर हम ये कहें कि साहब ये कमरा more or less comfortable है, so now there could be a definition of being comfortable: temperature, humidity, level of oxygen. ये एक comfort का zone हो सकता है, but then more or less, this is something which is known as hedges of the human explanation. So more natural and close to the human mind reasoning are the explanations that we do here. इसको define करने के लिए लुत्फ़ी ज़ादेह ने 60s में एक थ्योरी निकाली जिसको कहते हैं फजी थ्योरी. आप लोगों ने कभी वॉशिंग मशीन के ऊपर लिखा होगा, देखा होगा फजी वॉशिंग मशीन. एक्चुअली वहाँ फजी नहीं था, लेकिन फजी का मीनिंग क्या होता है मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. कि यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है अराउंड 220 वोल्ट. इसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे? हाउ वुड वी रिप्रेजेंट दिस मैथमेटिकली? सो व्हाट Lutfi Zadeh said, he is an Iranian working at the University of California, Los Angeles. He is a very good friend of many of Indians, and Professor Sufyan Beg from AMU worked with him in the postdoc. Yes. Okay. 220 वोल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ये कहा कि we would try to use certain graphs to represent it. उन्होंने कहा कि 220 वोल्ट को तो हम कहेंगे 1, कि उसका मेंबरशिप वैल्यू है टोटल 1, लेकिन 220 से अगर ऊपर है तो भी हम वैल्यू को कम करते जाएंगे 0.9, 0.8, 0.6, और 220 से कम है तो भी उसको हम मेंबरशिप वैल्यू देंगे 0.6, 0.4. So the collection of points on a given graph, the graph could be trapezoidal, it could be triangular, it could be a bell-shaped pie curve. So collection of points on the value of 220 on both sides of the curve could be taken, and we can represent around 220. This is just a very simple example. Now, inferencing, conclusion निकालना. आप कहें कि साहब पानी, हमारे पास knowledge है एक कि if the water is very hot, add plenty of cold water to make it moderately hot. ये एक knowledge है हमारे पास. अब कहा जाए कि साहब now the water is moderately hot, so how much cold water you will add? Now this decision has to be taken by the machine. So the machine will say add a little cold water. Now very hot, plenty of cold water, moderately hot,
little cold water, these are all variables which should be mathematically represented, then only the machine would understand. जिस दिन ये बातें वो समझने लग जाएगी, वो एक्शन लेने लग जाएगी, and that is what exactly has happened. किसी बच्चे को आप एक दिन कहिए कि बेटा पंखे की स्पीड तेज करो और नॉब को राइट घुमाना, अगले दिन आप कहेंगे स्पीड कम करने के लिए, आपको कुछ नहीं कहना. He will make the inference from the knowledge that you gave him yesterday. Today he will move the knob left. इसको इन्फेरेंसिंग कहते हैं कि एक नॉलेज दी आपने, उससे वो अगली नॉलेज ले, इसी को कहते हैं जेनरेटिव. कि आदमी के पास एक नॉलेज है, उससे दूसरी नॉलेज वो खुद जनरेट करता है, उसके बाद जैसे जैसे उसके पास नॉलेज आती रहती है, कीप्स ऑन जनरेटिंग, इसीलिए उसको कहते हैं जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, जीपीटी. तो जेनरेटिव है, वो नॉलेज जनरेट करता है फ्रॉम द प्रीवियस नॉलेज. वेल, इसके बाद हमने कुछ इसमें एक्सप्लेन किया. ये जो मैथमेटिक्स है फजी थ्योरी का, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था. लुत्फ़ी-ज़ादे हैड टू स्ट्रगल, लेकिन ये एक्सेप्ट तब हुआ जब एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट जिनका नाम है इब्राहिम ममदानी, उन्होंने सबसे पहले फजी लॉजिक का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन और इंडस्ट्रियल कंट्रोल में किया. एंड ही शोड टू द वर्ल्ड that in place of using the classical control system, we can use these soft computing tools and the industrial control can happen. He proved it and the world agreed. Gentleman came to India. Delhi में इब्राहिम ममदानी आए, हम उनका लेक्चर सुनने गए डेंटल हॉल में, and we found that he is an Indian. Ibrahim Mamdani is from Pune. So you see, it started with Lutfi-Zadeh, Iranian Muslim man, at the University of California, Berkeley. The application was proved by Kundu sir. The application was proved by Professor Ibrahim Mamdani, who works at the Queen's College, London. He could show to the world that yes, these variables which are natural, which have found a mathematical manipulation, could be used in machines and the machines can be controlled, and the world agreed to it. After that, a plethora of systems of soft computing came. So the fuzzy logic, intuitionistic fuzzy logic, then came the neural networks, then came the genetic algorithm, then neural genetic, and then many more soft computing started coming, and an amalgamation of all those tools have resulted into the creation of artificial intelligence. Now I come to the soft computing area. 5 more minutes, बहनों और भाइयों, 5 मिनट और दीजिए और ध्यान से बात सुनिए. इसके बाद हम अगले स्पीकर्स को मौका देंगे. देखिए, ये क्रोनोलॉजी है कि कैसे बात हुई, और ये तमाम लोग हिंदुस्तान आते रहते हैं, इनसे आप इंटरैक्ट कर रही है, एंड दे आर सो जेनरस पीपल दैट इफ यू राइट दे विल रिस्पॉन्ड. अब सिर्फ एक बात बचती है. दुनिया में बहुत सारे पैराडॉक्सेस हैं जिसको ह्यूमन माइंड एनालाइज कर लेता है. पैराडॉक्स, फिजिक्स पढ़ा होगा हमारे बच्चों ने, बच्चियों ने. श्रोडिंगर कैट थ्योरी आपको याद है? Schrodinger cat theory, in which it is said that the quantum state of a particle, the quantum can be present at 2 different places at the same time. ये पैराडॉक्स है. एक पार्टिकल एक ही वक्त में 2 जगहों पे हो सकता है, and it is proven fact. And that is how the Schrodinger theory came, the wave equation came. और इसी के ऊपर de Broglie, all these scientists started working. Now a situation given into life, there are many paradoxes that we face every day. और मैं एग्जाम्पल देता हूँ एक पैराडॉक्स का, जिसको कहते हैं सॉफ्ट कंप्यूटिंग. वो फजी से भी ऊपर की बात है. तो अगर हमारा स्टेटमेंट इम्प्रिसाइज है, लर्निंग की ज़रूरत है, अनसर्टेनिटी है, जहाँ ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है, वहाँ सॉफ्ट कंप्यूटिंग टूल्स यूज़ होंगे. और ये वो नाम हैं: फजी, न्यूरल, प्रोबेबिलिस्टिक, इवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग, एंड हर एक की शाखें हैं. आपको ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बेटे ज़रा तस्वीर अलग करो मेरी. इतने सारे एरियाज हैं जिनको मिल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना है. कैन यू प्लीज गो थ्रू इट, गिव 30 सेकेंड टू रीड द एरियाज. पढ़ाई में आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा मुश्किल है, छोटा छोटा है. सॉफ्ट कंप्यूटिंग लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, जिसकी मैंने बात कही है. फजी लॉजिक,
जिसको लुत्फ़ी ज़ादे ने शुरू किया, इंट्यूशनिस्टिक फजी लॉजिक, रफ सेट थ्योरी. प्रोफेसर के बिस्वास in IIT Delhi works on rough set theory, and I have also worked with him. We published a common paper with that. Vague set, type 2 fuzzy set, neutrosophic logic. The last logic, which is known as neutrosophic logic, deals with the paradoxes of life. मैं इसको बता करके अपनी बात ख़त्म करूँगा. ये देखिए इतने सारे एरियाज़ हैं, नॉलेज बेस्ड सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम्स, डेटा ड्रिवन सिस्टम्स, नॉन लीनियर डायनेमिक्स, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड लर्निंग, और फिर ये सॉफ्ट कंप्यूटिंग, इन सब को मिला करके एआई का एक टूल बनता है. ये बात अलग है कि अब हर बच्चा कोशिश कर रहा है कि एआई का कोई ना कोई ऐप बनाए. ये बड़ी अच्छी बात है. हम अपने बच्चों को इनकरेज करें स्कूल लेवल से ही कि वो पाइथन की प्रोग्रामिंग सीखें, इंटरेस्ट लें, सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग सीखें, पाइथन सीखें और एआई के टूल्स बनाना खुद शुरू करें रादर देन यूजिंग देम. नंबर्स की बात हो रही थी. 5 is a number, but about 5 is also a number. 5 to 6 is also a number. And then about 5 to 6, जब हम अपने लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम इसी तरह से बात करते हैं, 5 से 6 के बीच में होगा, कुछ ऐसा कहते हैं. तो अबाउट 5 to 6. लिंग्विस्टिक डेटा, चीप इज द डेटा. अब चीप किसको कहेंगे, किस कॉन्टेक्स्ट में है, तो इट इज़ ऑल कॉन्टेक्चुअल, और उसको समझना है मशीन को. वेरी बिग, नॉट हाई, मीडियम और बैड. इसी तरह से फंक्शंस हैं फिजिक्स के और मैथमेटिक्स के. एफ एक्स इज ए फंक्शन. अबाउट एफ एक्स इज ऑल्सो ए फंक्शन. फेमिलियर, सिमिलर टू एफ एक्स इज ए फंक्शन विच शुड बी अंडरस्टूड. आगे चलता हूँ मैं ये सारी एप्लीकेशंस एआई की आ गई हैं. सॉफ्ट कंप्यूटिंग एंड फ्यूचर, these are the various areas in which the fuzzy logic has worked, and the different scientists who have done the evolution into the soft computing area. I have just listed them, their names, and we have all collaborated with them. Those who are working in the area of AI, they cannot do without having a good collaboration with these scientists. We have done it. I'm just coming to the last person, who is the propounder of the वो कहाँ चले गए? I'm just trying to give you one example of the neutrosophic logic. ये श्रोडिंगर कैट थ्योरी की मैंने बात कही, जहाँ एक फोटोन दो जगह पे एक ही वक्त में रह सकता है, and we have found mathematical representation through Schrodinger wave equation. Now this is a man whose name is Epimenides from Crete Island. ये जहाँ से एरिस्टोटल थे, जहाँ से सॉक्रेट्स थे, ये वहीं के रहने वाले ये भी हैं. Whose name is Epimenides. What he said once, just give me two more minutes. He said once to the entire countrymen, Crete Island, he said all Cretes are liars. तो philosophers कुछ ऐसे ही होते थे. Then the people, the Crete Island people, came running after his life. How can you say that the Cretes are liars? He said, come, I will explain to you. आइए, सब लोग जब आ गए तो उन्होंने कहा, I am a Crete, so whatever I say is a lie, and therefore you are not liars. You understand the point? He said all Cretes are liars. I am a Crete, and therefore I am also a liar, and therefore whatever I say is a lie, and therefore you are not liars. Now this is a paradox. Unless he is not a liar, whatever he says cannot be considered as a fact. Unless you consider it as a fact, he cannot be a liar. And if he is a liar, then nobody is a liar, because a liar, whatever he says is a lie, and therefore all the Cretes are not liars. This has been considered into computer science one of the greatest paradoxes of computer science. Now, there has been a ways and means to find a mathematical representation to such kind of paradoxes, which is known as neutrosophic logic. So I would show you the neutrosophic logic, how this is a gentleman whose name is Samarandache from US, and many of my own students from Jamia Millia Islamia have been working with him. I have guided a PhD on the
Neurosophic neural networks. So we have developed neural networks who could understand such paradoxes and give you a correct solution and could identify as to where do you lie when you say something. So what is neurosophic logic is just explained here, that it is a generalized logic. It encompasses all the logic that have been explained so far. Because of the incorporation of such logics into computer science and description of mathematical expressions for such kind of data which were normally not represented and found, the AI has been possible. When we were studying, the AI was there, but not the way it is now. We can make out as to why, because we have been talking about AI for the last 50 years, but now it has found the importance. Why? It was because of the high computational power that is available and the huge amount of memory that has become available, which was not earlier possible. Thank you very much for very patient hearing. God bless you all. My introduction about the next speaker, I will be calling sir shortly, Dr. M. Abdul Samad Ibrahim, and let me give his introduction. He, sir, has been additional director at the state-of-the-art Electronic Media Production Center at IGNOU, and he superannuated as an academic of the university at the age of 62 on 31st December 2021. He has been senior educational technologist and has worked with distinction in the field of educational technology for over 30 years, covering digitization of education from development of e-content to delivery and management using multi-channels, harnessing the best practices including OERS and MOOCs. Whatever that is, I think sir will tell. I am not aware about it. But without much ado and wasting much time, I will invite sir to come and render his speech, which I would request sir to be extremely precise and concise. That's what we call in law, to convey whatever you wish to convey, but in just 10 minutes or 20 minutes, because we are running short of time. 10 to 12 minutes, sir. My apologies, but 10 to 12 minutes. Allah bless us all, especially Assalamu alaikum. Very special salam to my sisters. अब मैं सबसे पहले तो एक बात कहूँगा कि क्या कहें, इस वक्त सैयद हामिद साहब की रूह और सर सैयद की रूह बहुत खुश हो रही होगी, क्योंकि यहाँ और एक और खातून की, मतलब बी अम्मा की, जिन्होंने हमको ये मुल्क तोहफे में दिया। मुझे इतने हिजाब में वो बच्चियाँ जो बैठी हैं यहाँ, बिल्कुल ये लगता है कि बी अम्मा यहाँ मौजूद हैं, और अगर वो ना होती तो आज हमें ये आज़ादी ना मिलती। उस तारीख़ में आप लोग जाएँ तो देखें। और ये कारवां जिसने इसको इस वक्त ख्वाजा शाहिद साहब, उनकी बेलौस इसमें वो, और हमारी आपकी सबकी, मतलब आज की रज़िया सुल्तान, मतलब हमारी डॉक्टर फौजिया, मतलब ये जो कारवां है, इसकी असल मीनिंग क्या है? इसकी असल मीनिंग ये है कि आप तक इल्म को और इल्म दोस्ती को और इल्म के पैगाम को और आपके अंदर जो जज्बा है, जिसको अब्दुल कलाम ने कहा था इग्नाइटेड माइंड्स, वो पहुँचाना। मेरे मोहतरम सीनियर और बहुत दिल अजीज़ प्रोफेसर अब्दुल क़य्यूम साहब ने जिस तरह से आपको वो जो बड़े बड़े मुअम्मे बने थे हमारे सामने, वो आपके सामने रखे कैसे साफ करके, यही इस कारवान का पर्पस है कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज में पार्टिसिपेटरी फ़्लो लाना, आपके साथ आपको दिखा देना, ये कोई छल कपट नहीं है। डीमिस्टिफिकेशन ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, उसके लिए कारवान जो है ये उसकी ये इसकी रूह और रवां है। मुबारकबाद इसके लोगों को और आपको कि आपने इसकी दावत अपने यहाँ रखी। अच्छा, अब मेरा जो इस वक्त मजमून है, मतलब वो इस सब के अंदर, क्योंकि ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो थी, ये हमारी वो चीज़ है जिसको हमको हासिल करना चाहिए। क्योंकि जैसे इन्होंने बताया, वॉशिंग मशीन जो है, अगर वॉशिंग मशीन के अंदर मतलब कि पानी गर्म जो हो रहा है फजी लॉजिक से हो रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ कही जाती है टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, कि टेक्नोलॉजी डिटर्मिन करती है, वही ख़ुद हमारी हदें बन जाती है। और हमारा बड़ा चैलेंज यही है कि वो हमारी हदें न बने, और ख़ास तौर से हमारा मुल्क जिसके अंदर के अक्सरियत जो है गरीब है और महरूम है, उसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी चोट भी हो सकती है। उसी को कहा गया डिजिटल डिवाइड तो नहीं क्रिएट कर रही, उसी के लिए कारवान होते हैं कि वो डिजिटल डिवाइड को तोड़े, ताकि उनमें दूरी कम रह जाए कि जो ऊपर पहुंच गए हैं और जो नीचे हैं। इसीलिए ये बताया आपको, इतनी डिटेल में समझाया कि कोई
ऐसा चूचू का मुरब्बा नहीं और ऐसी बड़ी चीज़ नहीं जो हम ना उठा सकें। आइजैक एसिमोव का हमने नाम सुना था हमारी अम्मा की किताब, साइंस के बहुत बड़े, जिन्होंने लॉजिक को और साइंस को एक्सप्लेन करते थे लोगों की ज़बान में। मेरे बड़े भाई ने इतनी प्यारी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया। खैर, मैं इसका एक दूसरा पहलू सामने रखना चाहता था एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, कि जो हम और आप इस्तेमाल कर सकें और उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। और वो एक रिकमेंडेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी रिकमेंडेशन, आपकी डॉक्टर फाजिया खां वो आपसे अपील करेंगी और आपके लिए रास्ता भी निकालेंगे और आप सब मिल के निकालेंगे। वो ये है कि इसके कुछ तरीक़े हैं जिससे कि ये जो रेवोल्यूशन आया है, इसके जो और पहलू हैं, बड़े पहलू हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के, जिसके अंदर डिजिटलाइजेशन पूरा मौजूद है, वो ये है कि ये एक रास्ता है जिसमें हम मुस्तकिल शरीक हो सकते हैं, अपना रास्ता खुद बिन सकते हैं। हम कैसे बिन सकते हैं? ये जो आप मोबाइल लिए बैठी, ये मोबाइल जो है, और इसके अंदर देखिए, आप अपने मोहल्लों में अपनी बच्ची, ख़ासतौर से मैं बच्चियों से अपील करूँगा, क्योंकि देखिए बच्चियाँ जो हैं हमारी, वो माशाल्लाह सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इसलिए स्ट्रॉन्ग है कि सबसे ज़्यादा उनको कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि उनके अंदर वो तक़वा है, वो परहेज़गारी है, वो डिसिप्लिन है। उनका डिसिप्लिन ने उनको, और उनकी मोहब्बत ने, उनके लगाव ने, और उनकी काइंडनेस ने, उनकी जनरोसिटी ने जो उनको ताकत दी है, उस ताकत का अगर इस्तेमाल करें। और अपने घर में जो मोबाइल है, वो ब्लॉग्स होते हैं, आप लोग जानते हैं, पॉडकास्ट होते हैं, ब्लॉग्स, और जितनी जो ऐसी टेक्नोलॉजी है ब्लॉग्स जैसी, ख़ास तौर से उसका इस्तेमाल करके आप उस पर अपने ब्लॉग्स डालें, अपना डायलॉग डालें, और उस ब्लॉग्स को शेयर करें दूसरे मोहल्ले से, दूसरी स्टेट से, एक कस्बा जो है वो अपने डिस्ट्रिक्ट सेंटर से, एक मोहल्ला अपने मोहल्ले से, एक दोस्त, एक लड़की अपनी दूसरी लड़की से, ताकि उसका ब्लॉग, इनका ब्लॉग अपनी कहानियाँ सुनाए और वो हवा में गूंजें और वो आवाज़ उठे। एक बहुत ख़तरनाक चीज़ डेमोक्रेसी के लिए कही जाती है, जो इस वक्त बहुत एविडेंट है और जिसमें हमारे सारे इंस्टीट्यूशन जाके ख़त्म होते जा रहे हैं। साइलेंस, द स्पायरल ऑफ द साइलेंस, मतलब वो कुतुब मीनार खामोशी का, कि बुलंदी की तरफ आज सोसाइटी जा रही है, हिटलर की सोसाइटी बुलंद हो गई है, आसमान को छूने लगी है, लेकिन एक खामोशी है उसके अंदर, वो आवाज़ दबती चली जा रही है जो सुननी चाहिए। वो सुनाएंगे आप लोग, वो दास्तान आपकी है, वो कहानी आपकी है। मीडिया पर्सन्स को मीडिया पर्सन कहने का सिर्फ हक तभी बनता है जब वो उसके अंदर आपको और ख़ुद को ढाल सकें, कि वो आपकी आवाज़ को उठा सकें, आप अपनी आवाज़ को खुद उठा सकें। आज ऑलरेडी नेट के ऊपर ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं, आप अपने ग्रुप्स बनाइए, इंटरनेशनल ग्रुप्स बने हुए हैं, जिसमें फ़िलिस्तीन का बच्चा लैटिन अमेरिका के बच्चे से, जापान के बच्चे से, इंग्लैंड के बच्चे से बात कर रहा है, कह रहा है कि आज मेरे यहाँ बम गिरा, लेकिन वो बम मुझ पे नहीं गिरा, वो तुम पे गिरा। वो जो हिरोशिमा साकी का बम था, वो जो तुम्हारे यहाँ फटा था, वो मुझ पे फटा था। और उससे उनके अंदर वो जज्बा आ रहा है, और वो फिर आंसर्स दे रहे हैं अपने मोहल्लों में, जो उठ के ऊपर जा रहे हैं। वो वोटर बनते हैं तो वो लीडरों को शर्मिंदा करते हैं, लीडर फिर उनके एजेंडा को एजेंडा बनाते हैं। एजेंडा सेटिंग आप करिए, अगर आप वो ब्लॉग्स और वो डिजिटल मीडिया, उसकी पार्टिसिपेशन। मैं यहाँ हाजिर हूँ और आना चाहूँगा बार बार कि जितने लोग चाहें, जितने स्कूल, जितने मीडिया पर्सन चाहें, उनको वो ब्लॉग्स का ज़रिया और जो उससे रिलेटेड ज़रिए हैं पूरे पॉडकास्ट के और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो पूरा सरमाया आपके पास मोबाइल टेक्नोलॉजी के ज़रिए अवेलेबल है और ऑनलाइन उनके साथ पोर्टल्स के साथ, उसको आप हासिल करें, उसमें पार्टिसिपेट करें और उसको अपना ज़रिया निजात बनाएं और पार्टिसिपेशन की शाहराह बनाएं। इसमें किसी सरकार की ज़रूरत नहीं, सरकारें आपको सुनेंगी, ये सिर्फ आपको अपनी आवाज़ को सुनाना है। और वो लोगों को, जो लोग मोहल्ले के हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, वो आप तक वो तरीक़े बता दें आपको, किस तरह से आप अपनी आवाज़ को रखेंगी वहाँ, उस आवाज़ को आगे पहुँचाएंगी और उस आवाज़ को आगे बढ़ाएंगी। और इसी के अंदर आखिरकार मैं ये कहूँगा कि ये जो आइलैंड्स हैं हमारे, जिसमें हम तन्हा बढ़ गए हैं, इस तन्हाई को छोड़ के हम उन सब मुद्दों को लेके चलेंगे। कौन हमारे मोहल्ले में पीड़ित है, उसकी आवाज़ बनेंगे, कौन वंचित है, उसकी आवाज़ बनेंगे, कौन पीछे रह गया, उसकी आवाज़ बनेंगे। उसकी आवाज़ बनना और उसको आगे पहुंचाना, वही हमारी निजात है, वही हमारा बुनियादी हक़ है, फरीज़ा है, हमारी ताकत भी है। अल्लाह हमको उसके अहल करे और मुझको, आपको ये हमारी राह निजात जो है मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। सजेशंस
नॉट क्वेश्चंस बट ओनली सजेशंस, अगर ऑडियंस से या कहीं से भी हैं तो बता दें ताकि हम उन्हें नोट कर लेंगे। मैम सजेशंस रखा, क्वेश्चंस का रखा नहीं है सर, इसलिए। सो एनी सजेशंस फ्रॉम द ऑडियंस आर मोस्ट वेलकम, वी विल नोट इट डाउन। मेजर साहब की स्पीच के दौरान इन्होंने कहा कि लेसन प्लान का आपने जिक्र किया। स्कूलों में लेसन प्लान, ईयर प्लान, मंथली प्लान, डेली जॉटिंग काफ़ी काम है। इसी तरीके से टीचर प्लस स्टूडेंट पार्टनरशिप की बात आपने कही, टीचर्स ट्रेनिंग की, तो मेरा सजेशन ये है कि फेम और ऑल इंडिया एजुकेशनल मूवमेंट की तरफ से टीचर्स के लिए इस तरीके का कोई सॉफ्टवेयर आप क्रिएट करें और उसकी ट्रेनिंग का नज़्म फ्रॉम ब्लॉक लेवल ये होना चाहिए, ये मेरा सजेशन। थैंक यू सर। आपका नाम बता दें बस। शाकिर शेख। शाकिर शेख, ठीक है, अच्छा सजेशन है सर, नोट कर लिया। मेरे ख्याल से अब और कोई सजेशन नहीं है तो विल प्रोग्रेस फॉरवर्ड विद द प्रोग्राम एंड आई विल नाउ गिव इंट्रोडक्शन ऑफ आवर नेक्स्ट स्पीकर, जनाब शारिक नक्शबंदी साहब। हिज ब्रीफ इंट्रोडक्शन इज दैट Sharik Naqshbandi Sahab has done Master of Journalism and he has been working with Midday and Inqilab for 8 years, and from 2010 to now he has been working with Roznama Asia Express, and he was instrumental, he was one of the media persons who went to White House when the nuclear deal was being signed with the Manmohan Singh government, and later on he also went to Iran on the invitation of President Ahmadinejad. I will now invite Sharik Naqshbandi Sahab to give his remarks as a co-chair within 5 minutes, sir. Please. यहाँ स्टेज पे मौजूद तमाम डिग्निटरीज, आप तमाम हजरात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले तो मैं ऑल इंडिया एजुकेशनल मूवमेंट और फेडरेशन ऑफ ऑल माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के जिम्मेदारान को ख़ास तौर से मोहतरमा फौजिया तहसीन खान साहब, खालिद सैफुद्दीन साहब और उनकी पूरी इंटायर टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। वो ख़ास तौर से इसलिए कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो, जामिया हमदर्द हो या हिंदुस्तान की किसी भी बड़ी दरसगाह हो, वहाँ के दानिश्वर हजरात को औरंगाबाद बुलाकर हमारे साथ इंटरेक्शन करवाना, ये वाकई वक्त की सबसे अहम ज़रूरत थी। और ख़ास तौर से AI के ताल्लुक़ से जो आज सेशंस रखे जा रहे हैं, ये वक्त के साथ चलने की और ये इस बात का सबूत है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मिल्लत की, हमारे कौम के जो ज़िम्मेदारान हैं, ये आने वाले चैलेंजेस से बखूबी वाकिफ़ है और ये चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें भी उन चैलेंजेस को बखूबी कबूल करें और उनके साथ जीने का हुनर सीख सके। इसीलिए AI जैसे अहम टॉपिक के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस लेना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और उनके इश्यूज़ को लेकर कॉन्फ्रेंस लेना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि हमारे दरमियान ऐसे दानिश्वर लोग मौजूद हैं जो मुस्तक़बिल की फ़िक्र रखते हैं। चूँकि मुझे यहाँ आने के बाद अचानक कहा गया कि आप कुछ कहे, AI पे मेरी ख़ास स्टडी नहीं है और मैं समझता हूँ कि आप लोगों के दरमियान जो हमारी आने वाली नस्लों की तामीर करने का जिनके पास एक मिशन है, उनके सामने बिना स्टडी के बात करना ठीक नहीं है। ये इस सेशन के साथ नाइंसाफ़ी होगी। बहरहाल चूँकि मेरा ताल्लुक़ मीडिया से है तो AI आ जाने के बाद हम इतना ज़रूर समझते हैं, ये अपने आप में ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये उम्मीद रखते हैं कि मीडिया में AI आ जाने के बाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाने के बाद शायद कोई पत्रकार देश के प्रधानमंत्री से ये ना पूछे कि आप आम कैसे खाते हैं, शायद कोई पत्रकार ये ना पूछे कि आप थकते क्यों नहीं हैं। इसलिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान समाज की तामीर के लिए जो अपना किरदार उसने अदा करना चाहिए, हम समझते हैं कि वो आज के दौर में अक्सर व बेशतर अफराद ख़ास तौर से मीडिया के मैदान में नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही वक्त पे सही इस्तेमाल होगा इंशाअल्लाह, तो हम समझते हैं कि हम गोदी मीडिया के अज़ाब से हमें निजात मिलेगी और इस देश को इंशाअल्लाह हम मुस्तक़बिल क़रीब में वाकई सुपर पावर की तरफ ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।
और मैं दरख्वास्त करूंगा क्योंकि अफशार आलम साहब नहीं आ पाए तो प्रोफेसर ख्वाजा शाही सर आएँ और अपने इख्तितामी कलिमात से हमको मुस्तफ़ीद करवाएं। शुक्रिया बहुत बहुत। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, मैं एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे यहाँ खड़ा हूँ। प्रोफेसर अफशार आलम साहब को ऑनलाइन इस सेशन की सदारत करनी थी और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमें लिंक नहीं मिल पा रहा उस टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनसे कि हम उनसे बात कर पाएँ। बड़ी मजबूरी है और वो शायद मैं इसलिए बिठा दिया गया कि उनका सब्स्टिट्यूट बन जाऊँ। बहरहाल मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, ये बड़ा दिलचस्प सेशन था, बहुत टेक्निकल सेशन था। प्रोफेसर अंसारी साहब ने बड़े टेक्निकल एस्पेक्ट को आसान ज़बान में, आसान मिसालों के ज़रिए हमें बताने की कोशिश करी और बताया भी कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब से चली आ रही है, कैसे डेवलप हो रही है और 50 साल से या 60 साल से इस पर काम हो रहा है और आज ये इसकी जो एक अवामी शक्ल है, इसको चैट जीपीटी कहा गया है, अवाम के पास सामने आई है, तो एक हलचल और डिस्कशन इसमें हो रहा है अपने करके। मेजर साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में इसका हमारे आम ज़िंदगी में, स्कूल की ज़िंदगी में टीचर के लिए इस्तेमाल बताया है, टीचर के रोल क्या हो सकता है, जो तालीम का जो नया तो नहीं कहूँगा लेकिन जो बहुत नुमाया पहलू सामने आ गया है कि स्टूडेंट लर्निंग टीचिंग होनी चाहिए। हर एक ये टीचिंग जो है वो स्टूडेंट लर्निंग, हर स्टूडेंट के इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करके टीचिंग प्लान या टीचिंग डिज़ाइन या टीचिंग प्रोग्राम या टीचिंग पेडागॉगी बनाएंगे। स्टूडेंट स्पेसिफिक होगी, ये नहीं कि 40 बच्चों की स्पेसिफिक होगी, स्टूडेंट स्पेसिफिक होगी। उसके से ये मेजर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये स्पेसिफिक स्टूडेंट की इंटेलिजेंस को, उसकी नॉलेज को, आप लोग बैठेंगे अगर आराम से, वरना तो बात भी नहीं हो पाएगी, तो उसको अगर हम समझ लेंगे हर बच्चे की, और उसके लिए बहुत डेटा चाहिए होगा, बहुत डेटा चाहिए होगा, वो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो इतना बड़ा डेटा जमा कर पाएगी और हर स्टूडेंट का एक स्पेसिफिक ज़रूरत को आइडेंटिफाई करके टीचर को बता देगी और टीचर उसके लिहाज से कर देगा। ये आने वाले चैलेंजेस हैं, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा हुआ है समझ के पढ़ के कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एजुकेशन सेक्टर में बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। दूसरे सेक्टर में हुआ है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हुआ है, मेडिकल साइंस में हुआ है और दूसरे साइंसेस मैदानों में हुआ, बढ़ गया है, लेकिन हमारे मैनेजमेंट में बढ़ गया है, रिसर्च में बढ़ गया है, लेकिन हमारे एजुकेशन सेक्टर में ये आने वाली चीज़ है, इससे हम बच नहीं सकते हैं। हम वी कैन नॉट विश इट अवे, वी कैन नॉट जस्ट विश इट अवे, तो इसके लिए तैयारी करनी है। और वो जो इनोवेटिव एजुकेशन की बात हो रही है कि एजुकेशन अब हमें वो देनी है, हमें अपने स्टूडेंट को वो तैयार करना है जो 20 साल बाद होने वाला और जो हमारे इमेजिनेशन में भी नहीं है क्या होने वाला है। तो हमें इनोवेटिव माइंड पैदा करने हैं, थिंकिंग माइंड पैदा करने हैं, एनालिटिकल माइंड पैदा करने हैं। वो अननोन सिचुएशन को कैसे फेस करेंगे वो तैयार करना है। हमें वो नॉलेज नहीं देनी है जो आज एग्जिस्ट करती है, उस नॉलेज की जो बॉडी ऑफ नॉलेज है जो आज एग्जिस्ट करती है, ये अगले 10 साल में आने वाली है, हमें उस पर कंसंट्रेट नहीं करना है। हमें उस पर कंसंट्रेट करना है जो अगले 20 साल 25 साल बाद नॉलेज होगी जिसको हम जानते भी नहीं हैं। तो ऐसे माइंड हमें बनाने हैं जो उस नॉलेज का ये तैयार हो जाएं फेस करने को। तो ये जो इन हजरात ने आपको बताया है ये वो नॉलेज है, वो टेक्नोलॉजी है जिसको लेके हम आगे वाले आने के लिए तैयार हो सकते हैं। इसके जो भी अच्छे बुरे असरात हैं उससे चर्चा हो रही है, आर्टिकल्स आ रहे हैं, रिसर्च हो रही है, बातचीत चल रही है, वो अपनी जगह है। लेकिन मैंने जैसे आपने दोहरा रहा हूँ अपनी बात, वी कैन नॉट विश इट अवे, वी कैन नॉट से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आएगी, आंखें बंद कर दें बैठ जाएँ। जैसे कंपटीशन आया, कंप्यूटर्स आए, ये सारी चीज़ें आती चली गई। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो डेवलप हो रहा है। ख़तरात हैं जिसकी तरफ हमारे एडवोकेट असलम साहब ने इशारा किया। मैं अपनी बात उस ख़तरात की तरफ कह के ख़त्म कर दूंगा। मैं बहुत ज़्यादा मुनासिब आदमी नहीं हूँ इस टॉपिक पे बात करने के लिए। तकरीबन 100 से ज़्यादा, 120-130 से ज़्यादा दुनिया भर के साइंटिस्ट और वो लोग जो कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर के साथ मुताल्लिक़ हैं, जिसमें मस्क भी शामिल हैं जो आपके ट्विटर वगैरह के मालिक हैं, वो सब शामिल हैं। उन्होंने एक मेमोरेंडम बना के सबमिट किया है टू द वर्ल्ड एट लार्ज।
और उस मेमोरेंडम में कहा है वी शुड पुट ए पॉज ऑन रिसर्च ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसको रोक दीजिए इसके ऊपर। और क्यों रोक दीजिए कि उससे पहले एक रेगुलेटरी सिस्टम को बनाइए, और अगर वो रेगुलेटरी सिस्टम नहीं होगा तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज, जिसका असम साहब ने इसकी तरफ इशारा किया, हो सकता है। और उसकी मिसाल उन लोगों ने उससे दी है कि जिस तरीके से क्लोनिंग का जब रिसर्च शुरू हुई, क्लोनिंग के ऊपर, और रिसर्च करके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाए गए जो क्लोनिंग के ज़रिए लाइफ पैदा किया, चाहे वो शीप हो चाहे कुछ हो, उसके ऊपर पॉज किया गया है, दुनिया ने पॉज किया है। और पॉज करके उसको रोका है कि जब तक कि कोई रेगुलेटरी सिस्टम नहीं होता ये क्लोनिंग को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। वो रुका हुआ है उस प्रोसेस को अपने करके। उसकी मिसाल उन्होंने करके दी है कि ख़तरात उनको यही हैं कि इसके मिसयूज से हम, इस मिसाल के तौर पे ये जनरेटेड, जिसको जीपीटी कहा गया, जनरेटिव ट्रांसफॉर्मेटिव जीपीटी, प्री ट्रेन, जनरेटिव प्री ट्रेन, जो पहले से आपने ट्रेन कर दिया, जनरेट वही होगा, वही ट्रांसफ़र होगा। तो अगर आपने आर्टिफिशियल जरिए के लिए जो नॉलेज प्री ट्रेन कर दी है, तो जैसे ह्यूमन माइंड कहेगा कि हमास कौन है, जवाब आएगा टेररिस्ट है, जवाब आएगा कि वो ख़राब लोग हैं। तो ये प्री ट्रेन माइंड जो आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वही जवाब देगा। तो जब स्कूल के बच्चे उस पर पूछेंगे, या और भी, या आप कहेंगे वोमेन कौन है, वो जेंडर है, उसको लोअर जेंडर कह देगा, वुमेन जेंडर कौन है, या कास्ट सिस्टम को कुछ। तो इस किस्म के अगर जो हमारे समाज में ऐसे इश्यूज़ हैं, वो जो प्री ट्रेन माइंड अगर है, वो प्री ट्रेन इन्फॉर्मेशन अगर उसमें दे देते हैं, ये ख़तरात हैं जिसकी तरफ इन लोगों ने इशारा किया, जिनको मैंने कहा कि 120-25 लोगों ने किया है। लेकिन इन ख़तरात के बावजूद, जैसे मैंने पहला जुमला कहा, उसको दोहरा देता हूँ, वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोग्रेस, इट्स रिसर्च, इट्स यूजेज इन आवर कॉमन लाइफ। तो जहाँ इसका इस्तेमाल बढ़ेगा, जिस तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर पॉज कर दिया गया, दुनिया ने रोक दिया गया है कि उसका इस्तेमाल करने के लिए नॉन प्रोलिफरेशन एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, उसके नुकसानात हैं, उसके फ़ायदे भी हैं, उसके न्यूक्लियर एनर्जी के फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। उसी तरीके से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दोनों पहलू हैं जिसकी तरफ मैं मुतवज्जा करना चाह रहा था, करना चाह रहा हूँ और कर रहा हूँ। उसको दोनों को हमें अपने सामने रख के आगे बढ़ना होगा, और जो जो इसके ख़तरात हैं उसको भी हमें मिनिमाइज़ करना होगा, जो अच्छे फ़ायदे हैं उसको करना पड़ेगा। दुनिया में चेंज इज़ इनइवाइटेबल, चेंज इज़ इनइवाइटेबल, तो तब्दीली तो आएगी, उससे घबराना नहीं है, उसको इस्तेमाल करना है, उसको अच्छा इस्तेमाल करना है। तो यही मैं समझता हूँ हमारा इस सेशन का जो मकसद था, जब हम इसको प्लान कर रहे थे कि हम अपने ऑडियंस को, अपने डेलीगेट्स को, और ख़ास तौर से टीचर हजरात को बताएं कि इस फ्रंटियर्स ऑफ टेक्नोलॉजी क्या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका कैसे हम अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। मशीन लर्निंग इसका दूसरा नाम है। मशीन लर्निंग का एक पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो एक सॉफ्टवेयर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के पूरा कंसेप्ट है। तो किस तरीके से, जैसे हमने हमारे बताया गया, सेशन भी दिया गया, टीचर्स को अपने आप को तैयार करना है इसके बारे में, इस टेक्नोलॉजी के बारे में, इसके इस्तेमाल के बारे में। और इसका इस्तेमाल के लिए आपको बड़े बड़े कंप्यूटर्स की ज़रूरत नहीं होगी, इसका इस्तेमाल आपके मोबाइल से भी हो रहा है, इसका इस्तेमाल और दूसरे हार्डवेयर से भी होने लगेगा जो हमारे पास आस्ता आस्ता आने लगेंगे। तो ख़वातीन और हज़रात, मैं डरा नहीं रहा, लेकिन मैं आपको हर पहलू की तरफ मुतवज्जा करना चाह रहा हूँ। ये एक बड़ी मुफीद चीज़ है। टीचर्स को अपने आप को ट्रेन करना होगा, जो ज़िम्मेदारान हैं स्कूलों के, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के, उनको अपने टीचर्स को इस प्रोग्राम के तैयार करना होगा, और इसके मुताबिक पूरी पेडागॉजी चेंज हो जाएगी। ये पेडागॉजी वो पुरानी नहीं रहेगी कि आप 40 बच्चों को लेके आप एक क्लास में लेक्चर दे रहे हैं। हो सकता है ये अभी हमारे मुल्क में जहाँ बहुत गुर्बत है, जहाँ बैकवर्डनेस है, शहरी और रूरल डिवाइड है, इसमें आने में बहुत वक्त लगेगा, फैलने में वक्त लगेगा, लेकिन आएगा। इसकी तैयारी करनी होगी। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ तमाम स्पीकर्स का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में अपनी बातें रखी हैं। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो यहाँ हमारा ऑडियंस है, वो इसमें जो टेक अवे दिए गए हैं, मेजर साहब ने दिए हैं, या हमारे अंसारी साहब ने दिए हैं, या समझ साहब ने दिए हैं, वो टेक अवे ले जाके उसका अपना बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस सेशन के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है।